Hello, my dear student. Good evening, good morning, good afternoon, what it may be. I don't know at what time you are watching my video, but hope you are very fine. You have been learning regarding the topic hydrocarbons, and from that, we have been learning alkanes. This is lecture number 79. Do watch my earlier videos also. In alkanes, we have started the study of isomerism and nomenclature. In the last lecture, I have given you one of the example of that hexane. We have seen, I have given you the table also. How many isomers can be formed by the alkanes? You know better what is isomerism. What is isomerism then? When two or more organic compounds having same molecular formula have different structural formulae, and that's why the different individuals they may be called, isn't it? Different compounds, then they are known as isomers of each other, and the phenomenon is known as isomerism. Very clear. In that we have seen hexane. Now see the question there, it may be asked about the times. Write structures of different chain isomers of alkane with formula 7 C7H16. हमने देखा था C6H14 का, और मैंने एक चार्ट भी आपको दिया था that first three alkanes मीथेन इथेन प्रोपेन do not have any isomer. ब्यूटेन के हमने देखे थे 2 आइसोमर, पेंटेन के 3, और हेक्सेन के हमने देखे थे 5 आइसोमर्स. नाउ हेप्टेन have got almost 9 isomers. ओके, तो यहाँ पे हमें 9 आइसोमर्स लिखने हैं. रेयरली पॉसिबल क्वेश्चन, पर हमें आना चाहिए. ऑक्टेन के 18 पॉसिबल है, नोनेन के 35 आइसोमर्स है, एंड डीकेन हैज गॉट ऑलमोस्ट 75 आइसोमर्स. तो ये भी ध्यान में रखो क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है. ओके, नाउ this is C7H16. I told you that total 9 isomers are possible for this. The best answer if it is asked in MCQ. How many isomers are possible there for heptane? The correct answer is 9 isomers. अब 9 isomers को लिखने का एक चैलेंज हमारे पास है, but I will tell you one trick for that. How to find the isomers. पहले स्केलेटन ही लिखेंगे हम. that means particularly I will write here 1 2 3 4 5 6 7. okay, yeah, 1 2 3 4 5 6 7. ये स्केलेटन all are written in the straight chain. okay, तो स्ट्रेट चेन में लिखने के बाद अभी हमको मालूम है this is CH3, then middle carbon is CH2, this 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 is CH3. okay, and this is known as heptane. In IUPAC it is called as simply heptane. okay, and in common method it is called as N-heptane because all are in the straight continuous chain. हो गया. अब देखो बाकी के कैसे पॉसिबल है. हेप्टेन एक हो गया, एक आइसोमर तो हमको मिल गया आउट ऑफ 9. अब सेकंड कैसा रहेगा. अब हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ए चेन ऑफ 6 कार्बन फर्स्ट एंड 7th एज ए ब्रांच ऑफ मिथाइल. One I will take it at carbon number 2, other at carbon number 3. देखेंगे हम कैसा कर सकते हैं. This is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4, this is number 5, this is number 6, this is number 7, and then 2 number carbon I will write one branch there. okay, what I can write now. और दूसरी बार मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 कार्बन हमने लिखे थे स्ट्रेट चेन में.
we have to write 6 carbon there. Okay, 1 2 3 4 5 6, and then 7th in the form of branch. 1 2 3 4 5 6 and 7th in the form of branch. चलो एक एक को निपटाएंगे. ये दो पॉसिबिलिटी है. एक तो 2 नंबर के कार्बन पे जा सकेगा या 3 नंबर पे मिथाइल ब्रांच. ओके, नाउ वी विल कंप्लीट दिस. दिस इज CH3 dash, this is CH, this is CH2, this is CH2, this is CH2, this is CH3, and this is also CH3. Now you will ask me why this is CH. You know the answer better. Why? I told you that every carbon has got only 4 valency, 4 bonds. तो देखो ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड और एक 4. ये कार्बन को क्या हो गया है? 1 2 3 bonds are already there, isn't it? 1 2 3, and that's why hydrogen is only 1. इसलिए उसको हाइड्रोजन एक मैंने दिया है. ओके, और नंबरिंग विल बी देयर स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ द ब्रांच 1 2 3 4 5 6. So it will be known as, क्या नाम आ सकता है? 2-methyl हेक्सेन. दिस इज द सेकंड पॉसिबल. अब इसको मैं क्या करूंगा? यहाँ पे CH3, देन CH2, फिर यहाँ पे अगेन CH, देन CH2, CH2, CH3, and this is also CH3. So this is 1 2 3 4 5 6. So this will be known as what? Number 3, 3-methyl हेक्सेन. 3-methyl हेक्सेन. 3 आइसोमर तो मिल गए. तो मैंने क्या किया? पहले 7 कार्बन स्ट्रेट चेन लिख दिए. देन इन सेकंड स्ट्रक्चर आई हैव रिटन 6 कार्बन स्केलेटन, 1 2 3 4 5 6. ओके, और number 2 carbon has given 1 methyl branch. Now in the next structure, number 3 carbon has given 1 methyl branch in that 6 carbon skeleton. Okay, अब कोई सोचेगा 4 नंबर पे भी एक बार जा सकता है मिथाइल, 5 नंबर पे भी जा सकता है. क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, पर नेम विल बी अगेन सेम माय फ्रेंड. If I will write this methyl here, do you think that it will be called as 4-methyl hexane? सोचो, ये अगर 3 नंबर का कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आप बोलेंगे सही है सर, 4-methyl hexane नेम करेक्ट है, पर IUPAC सिस्टम क्या बताती है? राइट द नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ ब्रांच and give lowest possible number to the that carbon to which branch is attached. अब देखो ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा ये मिथाइल ग्रुप, तो हम उसको 4 नहीं कह सकते, हमको नंबरिंग यहाँ से देना पड़ेगा 1 2 3. So again it will be same, 3-methyl hexane. That means 4-methyl hexane is not possible. तो अभी आगे आगे क्या आइसोमर कैसे देखेंगे? अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक कार्बन को 5 कार्बन का चेन में लिखूंगा. आई विल राइट द चेन ऑफ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5. ओके, 5 कार्बन चेन आई हैव रिटन. हाउ मेनी? 5. अब 2 ब्रांचेस आ सकते हैं. One will be there on carbon number 2, one will be there on carbon number 3. So this is CH3, this is CH3. Then this is CH3, complete the skeleton now. This is CH dash, CH dash, CH2, CH3. हो गया? क्या नाम आएगा बता सकते हो? IUPAC नेम. देखो, नंबरिंग इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ द ब्रांच. ये यहां से चालू करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, यहां से लेंगे तो 1 2 3 आएगा. So 2 3 is okay, and that's why this is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay, this will be the 4th isomer now, and this will be known as 2,3 dimethyl pentane.
1 2 3 4 5, अब हेक्सेन नहीं है, पेंटेन है, क्योंकि 2 ब्रांचेस आ गए हैं. 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन विल बी द करेक्ट नेम ऑफ दैट. और एक पॉसिबल है, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा. 1, I will just put the line here so that we can write properly. Now I will write 1 2 3 4 5. Okay. अब देखो क्या करना पड़ेगा. 3 और 4 को लिख सकते हैं, 2 मिथाइल 3 और 4 को, नॉट एट ऑल, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, 3 और 4 को गया तो अगेन दैट विल बी 2 3. अब क्या करो, एक ही कार्बन को 2 लिख दो. This is 1, this is 2. Okay, then what will be the structure now? CH3. अब ये क्वाटरनरी कार्बन हो गया, इसका हाइड्रोजन नहीं रहेगा. This is CH3, this is CH3. Okay, and then this is CH2, CH2, CH3. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. आगे अब देखो इसका नाम क्या आ जाएगा. 1 2 3 4 5. It will be known as, this is number 5th isomer I am writing, 2,2 dash dimethyl pentane. 2,2 dimethyl pentane. देखो अब, यानी I am writing the chain of 5 carbon and 2 methyl groups I am writing on the same carbon, that is carbon number 2. That's why 2,2 dimethyl pentane. अब 3,3 भी आ सकता है, 4,4 नहीं आएगा, क्योंकि बाद में फिर उसको 2,2 ही कहना पड़ेगा, isn't it? अब देखो 3,3 कैसा आएगा. 1 2 3 4 5. ये नंबर 3 का कार्बन है, इसको मैं यहाँ पे CH3 लिखता हूँ, इसको भी मैं CH3 लिखता हूँ. देन अगेन CH3, CH2. नाउ दिस इज हैविंग ऑल 4 कार्बन एटम्स डन. यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 हो गए, वैसे यहाँ पर हो गए. all 4 carbon atoms are done. No hydrogen is required there to be written. Then that CH2 and then that CH3. This is number 1 carbon, number 2, number 3, number 4, number 5. And this will be the 6th isomer. That means 3,3 dash dimethyl pentane. 3,3 dimethyl pentane. अब क्या हो जाएगा? What is one more possible? Can you think? अब एक तो 3 नंबर के कार्बन को, ये 5 हो गया था ना, 1 2 3 4 5 6, अभी 3 और लिखने हैं, isn't it? तो अब और क्या पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पे? वी कैन टेक इथाइल को, अब 4 कार्बन की चेन बनाएंगे, विल मेक ए चेन ऑफ 4 कार्बन. 4 कार्बन की चेन बनाने के बाद क्या होगा? और इसमें कुछ पॉसिबल लेके देखो. पर्टिकुलरली 2 नंबर के कार्बन पे 2 आ गए, 3 नंबर के कार्बन पे 2 आ गए, 4 नंबर के नहीं आ सकते. तो पेंटेन यहां तक ये है, और यहां पर पेंटेन का ये 1 और 1 2, 2 और 3 को आ गए, 3 और 4 को नहीं आ सकते, isn't it? ये 2 और 3 को हेक्सेन कहा गया. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट CH, दिस कार्बन 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 कार्बन. 3 नंबर के कार्बन को मैं C2H5 ग्रुप लिख सकता हूं. देखो आप, CH3 CH2 CH CH2 CH3. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो क्या आ जाएगा ये नंबर 7 वाला, 3 dash ethyl pentane.
3-ethyl pentane, that will be okay. Now can you think what more are possible? और क्या पॉसिबल है, थिंक करो. Go on thinking. अब देखो मेरे ख्याल से एक यहाँ पे 2 और 3 को हमने लिया था, 2 और 4 को ले सकता हूं मैं पेंटेन वाला. ओके, तो पेंटेन वाला मैं और एक कर सकता हूं. 1 2 3 4 5. 2 को मैं CH3 ले सकता हूं, 4 को भी मैं CH3 ले सकता हूं. यहाँ पे जैसे 2 3 को लिया था, 3 4 को नहीं ले सकता हूं, बट 2 and 4 I can take. So this will be again CH3, CH, CH2, CH, CH3, and it will be known as 1 2 3 4. Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. This will be known as number 8 isomer. 2,4 dash dimethyl पेंटेन. यानी पेंटेन के कितने हो गए देखो आइसोमर. यहाँ पेंटेन से लेकर कितने बन गए, एक हो गया 2,3 डायमिथाइल, एक हो गया 2,4 डायमिथाइल, ये 3 इथाइल एंड देन 3,3 डायमिथाइल, 2,2 डायमिथाइल. बहुत सारे हो गए. और अभी एक बाकी है. कैन यू थिंक एट योर बेस्ट व्हाट वी कैन डू? सोच सकते हो. ये थोड़ा कैसा है, पर्टिकुलरली सेल्फ प्रैक्टिस से ज्यादा आने वाला है. ट्रिक मैंने बता दिया. पहले क्या करना है, 7 कार्बन इन द कंटिन्यूअस चेन, देन टेक 6 कार्बन इन द कंटिन्यूअस चेन, 1 एज ए ब्रांच. That how many possible that you can search by IUPAC name. 2 and that particular 3, they are only possible that we have seen. 2 methyl, 3 methyl. Then 4 methyl is not possible, so 3 isomer हो गए वहां पे. Now take the chain of 5 carbon atom and check the permutations and combinations. 5 कार्बन है, 2 मिथाइल वहां पे हम लिख सकते हैं. So you can write that 2 methyl branches either on 2 and 3, or just I have shown as 2 and 4. 3 and 4 को नहीं लिख सकते. Then उसके बाद वो परम्यूटेशन हो गया. उसके बाद क्या है, इन दैट सेम पेंटेन स्केलेटन 2 नंबर के कार्बन पे, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप, 2,2 डायमिथाइल. फिर 3 नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, isn't it? That is that 3,3 डायमिथाइल. और इथाइल ब्रांच भी आ सकती है. तो आप कहेंगे ये इथाइल ब्रांच 3 नंबर को लिखिए सर आपने, 2 नंबर को लिख के देखो, हो जाएगा हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 9th मिल जाएगा. सो डू यू थिंक इट इज करेक्ट एडवाइस और करेक्ट थिंकिंग? क्या बोलेगा सम ऑफ द स्टूडेंट? हम क्या करते हैं जब क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं आओ चलो लिख के दिखाओ यहाँ पे. तो ऐसा अभी मैं ऑनलाइन पे आपको कहता हूं, आप लिखो, ट्राई करो खुद. ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पर्टिकुलरली, यू ट्राई योर ओन, देन यू विल बी मास्टर. अदरवाइज आप खाली देखते रहोगे तो फिर बोर हो जाते, इधर उधर मन भटक जाता है. isn't it? कहीं से भी कुछ आवाजें आती है तो हम छोड़ देते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन उतना कैच नहीं होता, ऐसा लोगों का कहना है. बट माई ओपिनियन इज दैट ये तो सबसे कन्वीनियंट हो गया ऑनलाइन का. सिर्फ हमारे दिमाग में होना चाहिए, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न. ये अगर हमारे दिमाग में है तो डेफिनेटली वी कैन कॉन्सेंट्रेट. एखादी मूवी जब ऑनलाइन देखते हैं या ऑनलाइन पे कुछ हम शॉर्ट्स देखते हैं, कुछ कितना कॉन्सेंट्रेशन रहता है,
इजंट इट? उस टाइम तो बिल्कुल वो हेडफोन्स वगैरह लगा के हम देखते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, व्हाट इट मे बी। तो बाहर से कितने भी पेरेंट्स ने हमको कॉल किया तो वी इग्नोर दैट, या इग्नोर कहने का सुना ही नहीं देता ना, बिकॉज वी आर इन्वॉल्व टोटली देयर। सो माई रिक्वेस्ट इज देयर, यू जस्ट गेट इन्वॉल्व हियर। आराम से बैठकर घर में इधर उधर जाना नहीं, आना नहीं, कुछ नहीं, कॉन्स्टेंटली वी कैन सी दैट। और दूसरी बात, सबसे एडवांटेज क्या है दोस्तों, वी कैन रिवाइंड इट अगेन एंड अगेन। समझो एखाद मिनट के लिए मन बहक भी गया, इधर उधर गया, चलो कुछ भी आवाज आ गई, हमने उधर देख लिया और यहां तक वीडियो आगे चला गया, यू कैन अगेन टेक इट बैक एंड यू कैन वॉच दैट। तो वो तो लाइव में नहीं होता है ना। हम सर को कितनी बार कहेंगे, सर आपने अभी बताया था, लेकिन मेरा थोड़ा ये मन जो है वो खिड़की के बाहर चला गया था, एक अच्छी लड़की वहां से जा रही थी इजंट इट? तो फिर प्लीज रिपीट दिस, ऐसा आप कह सकते हो क्या वहां पे क्लास में? फिर वो सर अगर समझो पर्टिकुलरली बहुत डिसिप्लिन होंगे तो वो क्या कहेंगे, गेट आउट, वहां पे लड़की है ना, उसके पीछे जाओ, यहाँ पे क्लास में मत बैठो, लाइक दिस। सो वी कांट डेयर टू से दैट इन द लाइव सेशन, ये रिपीट करो बोल के। हाँ, आपने बिल्कुल डिफिकल्टी के अंदाज से पूछा है तो बिल्कुल स्टूडेंट, मेरे जैसे टीचर तो हरदम बता देते हैं डिफिकल्टी के अंदाज से, कि यानी मैं समझ सकता हूँ फेस रीडिंग से दैट दिस स्टूडेंट वाज हैविंग हिज कंसंट्रेशन, और सही से ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ डिफिकल्टी उसमें आ रही है, देन आई कैन एक्सप्लेन डेफिनेटली। ओके, सो अभी आपको थिंकिंग करना है व्हाट आई एम सेइंग। ये पूरा देखो, 8 तो मैंने लिखे, 7 कार्बन इन कंटिन्यूअस चेन, 6 कार्बन 1 ब्रांच, 6 कार्बन 1 ब्रांच, वो 2 पॉसिबल हो गए, ऐसे 3 हो गए। देन 5 कार्बन 2 मिथाइल ब्रांचेस, वो 2 पॉसिबल हो गए, 2 4 2 3 2 3 2 4 के। देन 5 carbon chain and 2 carbon on the same carbon, 2 branches on the same carbon, 2 2 dimethyl हो गया। देन ऑन 3 3 dimethyl, वो भी हो गया। और इथाइल का एक ब्रांच है, वो 3 नंबर को ही आ सकता है। मैंने अभी आपको पूछा था, इतना मैं बोल रहा था, मेरे ख्याल से आपने लिखा होगा डेफिनेटली, 2 डैश इथाइल पेंटेन आ सकता है क्या, ये बोलो। Will tell me, कमेंट में लिखो 2 डैश इथाइल पेंटेन whether it is possible, 2 डैश इथाइल पेंटेन। क्यों नहीं पॉसिबल? आंसर इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ए रॉन्ग नेम। व्हाई रॉन्ग नेम? क्योंकि आईयूपीएसी का एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो ऐसा कैसा हो सकता है, इजंट इट? यानी यहां पे क्या हो जाएगा, अगर 2 नंबर के कार्बन, यानी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन पे मैंने लिख दिया CH2 CH3 यानी C2H5, ये C2H5 है। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 2 डैश इथाइल पेंटेन, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कैसे आती है, 1 2 3 4 5 6, एंड इट्स नेम शुड बी, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3 4 5 6, its name should be 3 dash methyl hexane। वो तो हमने ऑलरेडी लिखा है 3 dash methyl hexane, ये देखो, isn't it? And that's why this, इसको आप स्केलेटन पूरा करो, आपको ध्यान में आ जाएगा what point I was saying, कि 3 dash ethyl हेक्स 3 डैश मिथाइल हेक्सेन हो गया, वो 2 डैश इथाइल पेंटेन नहीं, एंड दैट्स व्हाई ये आइडिया भी नहीं चल सकेगा, दिस विल बी रॉन्ग। ओके,
अब देखो, अब और दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं. इफ आई विल टेक 4 कार्बन के, हमने 7 कार्बन का लिया, 6 कार्बन का लिया, 5 कार्बन का लिया. नाउ ट्राई टू टेक 4 कार्बन चेन, और कहां कहां पे ब्रांचेस लिख सकते हैं देखेंगे. 1 2 3 4. अभी कितने कार्बन बच गए. नाउ 3 कार्बन वी हैव टू एडजस्ट. तो चलो एक कार्बन को हम 2 लगा देंगे, 2 मिथाइल ग्रुप. नाउ हाउ मेनी आर एडजस्टेड. 1 2 3 4 5 6. अब 7th को एडजस्ट करना है. बहुत ही सिंपल है. आई कैन एडजस्ट 7th ऑन दिस 3rd एज ए ब्रांच. एंड नाउ कंप्लीट. CH3, इसको तो हाइड्रोजन नहीं है, इसको एक होगा CH. And try to give the name. 1 2 3 4. So this is the 9th isomer which is possible there. Notice that 2 2 3 dash trimethyl, because there are 3 methyl branches, my friends. Trimethyl butane. 2 2 3 trimethyl butane. So the point is that it was just a kind of the puzzle, and that we have solved very easily. अब देखो, how many structural isomers are possible for heptane, ऐसा पूछा था. Rarely possible. हेक्सेन का तो एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व करके दिया है CBSE बुक में. हेप्टेन हमारे लिए सॉल्व करना है, एंड वी हैव सॉल्व दैट पजल. अगर रेयरली ये क्वेश्चन आ गया, आई एम श्योर यू विल बी able to answer that. But go on the trick what I have given there, and you will get it. And if you are getting it, definitely you can ask to your best friend who has not seen this video. आपका एखादा अगर बेस्ट फ्रेंड है तो उसके ऊपर ट्राई करो. अरे यार, एक प्रॉब्लम है, आप दिखाओ मुझे हेप्टेन के आइसोमर्स. एक तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल है वो भी उसको अगर याद नहीं होगा तो वो भी एक पॉइंट आ जाएगा. 9 आइसोमर्स यू कैन सी. देयर आर 9 आइसोमर्स फॉर हेप्टेन. यू कैन चेक इन द बुक, और वो लिख के दिखाओ. ऐसा चैलेंज दे दो ना अपने फ्रेंड्स को. वहाँ पे आप अच्छा आपको आता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे आपकी कॉलर टाइट हो जाएगी. मुझे तो आ रहा है, आप बता सकते हो. ओके, so this is one more advantage of my video. So I'm sure you have liked this video. So do share this video to your friend circle, and do subscribe to my channel Kateswar Chemistry. And from that this channel you will get MCQs also very soon. Thanks a lot.